Speaker sir. Speaker sir. Sir, I rise to oppose this draconian unconstitutional bill, sir. ओबीसी के बाद सर मुझे सिर्फ 2 मिनट दीजिए सर. ओबीसी के बाद Sir, this bill violates the right to democratic self-government, which is part of Article 1419. And if a legislative assembly is dissolved, sir, and midterm elections are conducted, the tenure of that assembly will not be for 5 years, sir. This in itself is a violation of parliamentary democracy, which envisages a tenured legislature. Sir, constitutional scheme makes it clear that once elections are conducted, the House should have a right to function for next 5 years. This is a violation of basic structure. That such a provision is being done for administrative convenience, not for constitutional purpose. Sir, the principle of federalism means that states are not mere appendages of the center. States are not dependent on the union for their existence. This is the violation of federalism, sir. Sir, in conclusion, Parliament is not competent to make any law that violates fundamental rights or the basis of the Constitution, sir. This bill indirectly introduced a presidential style of democracy. This bill is based on maximizing political gain and convenience. This bill will finish off regional parties. This bill is only brought in to massage the ego of the supreme leader. Thank you, sir. I oppose this bill. K. Radhakrishnan. अमराराम जी. माननीय अध्यक्ष महोदय, जो संविधान संशोधन 129 में जो संशोधन लाने के लिए लाए हैं बिल, मैं और मेरी पार्टी इसका विरोध इसलिए करती है कि ये बिल इस देश की संवैधानिक संस्था, संविधान और जनतंत्र को ख़त्म करके तानाशाही की ओर बढ़ने का काम है. इससे ज़्यादा कुछ नहीं है. क्योंकि आप खर्चे की बात करते हैं, जिसको 1 साल होगा उसके 4 साल में आप उसके जनतंत्र की हत्या करने का काम ये संविधान संशोधन, ये जो बिल लेके आए हैं, ये करने का काम करेगा. आइंदा भी निश्चित रूप से आप बताइए, लोकल बॉडी जो पंचायत और नगर पालिकाएं स्टेट गवर्नमेंट का है, उसको भी आप लेना चाहते हैं. क्यों लेना चाहते हैं कि एक हमारा ही चलेगा, बाकी देश का किसी भी राज्य का जो भिन्न भिन्न संस्कृति है, भाषा है, उसके अनुसार हमारे देश के संविधान ने उनको राज्यों को बनाया है, उनकी विधानसभा बनाया है, उनके अधिकार हैं. वो सब अधिकार आप इस बात के माध्यम से यहाँ लेना चाहते हैं, और केवल इसलिए कि तानाशाही फासिस्ट जो ताकत आप रूप से विरोध चाहे 356 हो, आगे भी अगर मान लो डिजोल्व हो गया, कोई फॉल्ट हो गई, सरकार गिर गई, तो उसके लिए भी आप अगर 2 साल बाद गिर गई तो 3न साल के लिए चुनाव होंगे, 1 साल बच गया तो उसके लिए होगा. इसलिए ये डिटेल चर्चा करेंगे, बात करेंगे. सुप्रिया सुले चर्चा कराई, और आज 2 दिन बाद में उसी संविधान को तहस नहस करने के लिए बिल लेके आए हो. इसका हमारी पार्टी बिल्कुल विरोध करती है. सुप्रिया सुले. थैंक यू सर. Sir, on behalf of the Nationalist Congress Party SP, I oppose the 129th Constitution Amendment Bill. Clearly, most of my colleagues have made the 3 most important points: that this is completely against federalism and the Constitution of India. The centre and the states have their own tenures and terms. So I think to mix the two is not fair, because the Article 356, because just last week, sir, we debated Article 356, and in the case of S.R. Bommai versus the Constitution of India, dissolving of assemblies was something which both sides have objected, and both sides have done it. So if we object to this, why are we giving this authority to the Election Commission to dissolve assemblies who are elected for 5 years? So I think to break these tenures is completely objectionable, and India is a union of states. Central government cannot. Cooperative federalism is something which we are so proud of. So I request the Honorable the Government of India either to withdraw the bill or send it to a joint parliamentary committee, so we have a detailed discussion, and we'll be happy to support as long as it comes to a joint parliamentary committee. Thank you, sir. संक्षिप्त में बोलना श्रीकांत जी, सब संक्षिप्त में बोलो भाई. धन्यवाद अध्यक्ष जी. आज मैं अपनी पार्टी
Let him speak. दादा बेटे आपको मिला नहीं इसलिए हमें भी आप वंचित मत कीजिए। बस एक्सप्रेस करना चाहते हैं हम भी। मैं आज अपनी पार्टी। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य बालू साहब ने कहा कि इसको जेपीसी को दे देना चाहिए। जब ये संविधान सुधार का विधेयक, संवैधानिक संशोधन जब कैबिनेट में चर्चा में आया, तब प्रधानमंत्री जी ने स्वयं मंशा व्यक्त करी थी कि इसको जेपीसी को देना चाहिए। इस पर विस्तृत चर्चा सभी स्तर पर होनी चाहिए। इसलिए मुझे लगता है कि इसमें सदन का ज्यादा समय जाया करे बगैर, अगर मंत्री जी कहते हैं कि इसको जेपीसी को सौंपने के लिए वो तैयार है, तो जेपीसी में सारी चर्चा होगी और जब जेपीसी के रिपोर्ट के आधार पर कैबिनेट इसको पारित करेगी तब भी फिर से चर्चा होनी है। तो मैं मानता हूं कि माननीय मंत्री जी अगर जेपीसी में रखने की इच्छा व्यक्त करते हैं तो यहीं पर एक चीज समाप्त हो जाएगी। अध्यक्ष जी, जो ये चर्चा हुई है इसका जवाब देने के बाद जो नियम 74 है जिसमें मैं एप्रोप्रिएट जो मोशन ला करके और जेपीसी के गठन का प्रस्ताव निश्चित रूप से करूंगा, निश्चित रूप से जेपीसी के गठन का प्रस्ताव करूंगा। रूल 74 के तहत जेपीसी के गठन का प्रस्ताव है और सरकार की इच्छा भी है। श्रीकांत शिंदे जी संक्षिप्त में मैं सबको बोलने का मौका दूंगा, लेकिन एक मिनट में अपनी बात करें, विषय पर समाप्त कर दे। आपके दल के लोगों ने डिटेल बोल दिया। श्रीकांत शिंदे जी, आज मैं अपनी पार्टी शिवसेना की तरफ से 129 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल और यूनियन टेरिटरीज अमेंडमेंट बिल पर बोलने के लिए खड़ा हूँ। मैं शिवसेना और हमारे नेता एकनाथ शिंदे जी की तरफ से इस बिल का पूरी तरीके से समर्थन करता हूँ और आज यहाँ पर विपक्ष वाले 6 महीने से हर एक मुद्दे को असंवैधानिक बताने की कोशिश यहाँ पर कर रहे हैं। मुझे लगता है कि रिफॉर्म शब्द जब ये आता है तभी कांग्रेस को रिफॉर्म शब्द से ही एलर्जी यहाँ पर मुझे लगता है कि कांग्रेस को है। यहाँ पर सभी लोग संविधान की बात कर रहे हैं सर, हर एक व्यक्ति यहाँ पर उठकर संविधान समझा रहा है। मुझे लगता है मैं इनको याद दिलाना चाहूंगा कि 1975 में इंदिरा गांधी सर ये बिल जो 1975 को शुरू करता हूँ, इंदिरा गांधी जी को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इलेक्शन मैल प्रैक्टिस। अरे वो विषय क्या है, आप संक्षिप्त में करिए। सर एक पॉइंट बोल रहा हूँ सर, यानी इलेक्शन मैल प्रैक्टिस और यानी चुनावी भ्रष्टाचार के लिए गिनती पाया और 6 साल के लिए डिस्क्वालीफाई कर दिया। उस जज के साथ कैसा व्यवहार हुआ ये पूरा देश यहाँ पर जानता है और सिर्फ 3 दिन में 29वां संविधान संशोधन लाकर प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और लोकसभा अध्यक्ष को जुडिशियल रिव्यू से बाहर कर दिया। ये इनका संविधान है सर, ये फेडरलिज्म ये बिल क्यों जरूरी है, ये 2 पॉइंट्स में समझाना चाहूंगा सर। समझ गए आप? एनके प्रेमचंद जी, एनके प्रेमचंद प्लीज कोविड समिति जो गठित हुई उन्होंने वाइड पब्लिक कंसल्टेशन किया। स्पीकर सर 47 राजनीतिक दलों ने अपनी राय प्रस्तुत की। Speaker sir, thank you very much for affording me this opportunity to speak on the introduction of the bill. Hey, Bhagwaida, Dharmendra ji, sir, एनके प्रेमचंद जी, thank you very much, Mr. Speaker sir, for affording me this opportunity to oppose the introduction of the bill. प्लीज On behalf of my party, sir, on behalf of my party. एक सेकंड सर कोविड समिति की रिपोर्ट है, उन्होंने वाइड पब्लिक कंसल्टेशन किया सर।
कि 47 राजनीतिक दलों ने अपनी राय प्रस्तुत की, जिसमें 32 दलों ने वन नेशन वन इलेक्शन को समर्थन किया। ये दिखाता है कि देश के अधिकतर राजनीतिक दल इस सुधार की आवश्यकता। सुप्रिया जी, सर ऑन बिहाफ ऑफ माय पार्टी, क्या तरीका है सर ऑन बिहाफ ऑफ माय पार्टी, सर स्पीकर सर, स्पीकर सर, Speaker sir, on behalf of my party, Revolutionary Socialist Party, RSP, I vehemently